Today's class is very important, and today's class we are going to discuss a new clause, that is this group by clause. Group by clause. So this is a special clause which is used inside the select clause. So select clause हमने पढ़ा है. Select clause का क्या syntax है? Select, then the list of column, then from, then the table name, then where. Then we can specify the condition. Then suppose we want sorting, then we are using this order by clause. So this is something like the syntax of this select clause. But remember one thing, that this when we apply this where clause, then this where condition is applied to all the records. Applies to all the records. Means all the queries that we have done, these all queries applies to all the record of the table. But suppose what we want to divide these all the records into the different groups. Suppose we want to divide the records into the different groups. Suppose this is group 1, then group 2, then group 3. Then we want to apply the condition within the group, or suppose we want to do certain work inside that group, then we have to use this group by clause. So what does group by clause do? It simply divide all the records into the different groups based on the unique value for that particular column. So suppose what I am doing, suppose I am doing group by, and then suppose the name of the column. Suppose I am working in EMP table and there is a column, suppose EMP ID. So group by EMP ID. So what it will do, it will simply make a group based on the unique value of this column EMP ID. Okay. So remember one thing, what is group by clause doing? It is simply making a group, and making a group based on all the unique value for that particular column, that which we are providing in the group by clause. Clear? So what it is doing, it is simply making a groups. Making a groups of query result. Whatever the query that we are doing, all the query result will be divided into the groups. Okay, so this is the table. Suppose for example, this is the table which is given, and table name is EMPL. Now you can see in this table, you are able to see this table. EMP number, E name, job, MGR, hire date, cell, com, and DEPT number. Suppose this is the table which is given. These are the different employee number, these are the different employee name, these are the job of that employee number, MGR, hire date. So all these records are given. Now suppose what is the query? Suppose there is a query called write a query to display the number of employees working in each job. So क्या इसका आंसर बनेगा? Anyone? Select. Very good. Select. Count employee. E-name. Employee where job equal to salesman. Very good. E-name. Select count asterisk From from E-name EMPL where job equals to salesman. So it's very simple. ओके अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सिलेक्ट काउंट के बाद मैं यहाँ पर ई नेम यूज़ करूँ कि एस्ट्रिक यूज़ करूँ. तो देखिए जब आपको एम्प्लॉयज़ काउंट करने, तो मैंने आपको बताया था जब आप एस्ट्रिक करते हैं तो पूरे रिकॉर्ड को काउंट करता है, और पर्टिकुलर कॉलम अगर आप यहाँ पर दे देते हैं तो उस कॉलम की जो नॉट नल वैल्यूज़ है, देन इट विल काउंट ऑल द नॉट नल वैल्यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम. सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी. वैसे अगर आप ई नेम भी लिखेंगे तो ई नेम में थोड़ी सी रिस्क रहेगी कि अगर कहीं पर नल हुआ तो उसको काउंट नहीं करेगा. सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द एस्ट्रिक. तो अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम मेंशन नहीं है, हमें तो सिंपल काउंटिंग करनी है जिसका सेल्समैन रिकॉर्ड्स हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर एस्ट्रिक को यूज़ कीजिए. बात समझ में आ गई? सो व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? द आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस, काउंट एस्ट्रिक, देन दिस डैश डैश लाइन्स, then it will count all the employees whose job is salesman, this 1 2 3 4. Okay, so its answer is simply like this, count asterisk then 4. Okay, now suppose there is a question, how many employees working in manager, how many employees working in manager department. So we can write select count asterisk from EMPL where job equals to manager. Now suppose the question is something like this, write a query to count number of employees
फॉर ईच डिपार्टमेंट। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर ईच जॉब टाइप, डिपार्टमेंट तो नहीं है सर, यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, फॉर ईच जॉब टाइप, मतलब हमको एम्प्लॉइज काउंट करने फॉर ईच जॉब टाइप। अब मैं कह रहा हूँ, अब पहले मैंने कहा कि मैनेजर के लिए कितने, तो आपने कहा वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर का काउंट हो गया। सेल्समैन के कितने, तो सेल्समैन का काउंट हो गया, मतलब हम वेयर के अंदर कंडीशन दे रहे हैं। बट सपोज वी वांट टू डू दिस वर्क फॉर ईच जॉब टाइप, मतलब सिस्टम अपने आप ही करे। फॉर ईच जॉब टाइप का मतलब क्या है कि वो क्या करे, जॉब के अंदर देखे कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, जॉब के अंदर देखिए कितनी यूनिक वैल्यूज है। तो जैसे क्लर्क इसके अंदर यूनिक वैल्यू, तो वो क्लर्क में कितने हैं वो काउंट करें, फिर वो सेल्समैन में कितने हैं उनको काउंट करें, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो टर्म अगर किसी भी क्वेरी में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, फॉर ईच जॉब टाइप, फॉर ईच कमीशन टाइप, फॉर ईच डीपीटी नंबर टाइप, मतलब ये ईच टर्म अगर किसी क्वेरी में आ जाए, देन ऑब्वियसली वी हैव टू यूज दिस ग्रुप बाय क्लोज। क्लियर और नॉट? मीन्स हो क्या रहा है कि पहले क्या था कि हमने एम्प्लॉइज काउंट किए थे किसमें, जो कि खाली सेल्स में। अब मुझे हर एक यूनिक वैल्यूज पे काउंट करने, सो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, मतलब ये जो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10-15 जो भी रिकॉर्ड्स हैं, इन सारे रिकॉर्ड्स को मुझे क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। और वो ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस्ड होगी, जॉब टाइप के ऊपर बेस्ड होगी। मतलब जो क्लर्क होंगे, तो पूरे जितने भी क्लर्क होंगे उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाएगा। सो मैंने आपको क्या बताया कि व्हेनेवर दिस टर्म्स कम्स ईच, जब भी ये ईच टर्म आएगी, देन ऑब्वियसली वी हैव टू यूज दिस ग्रुप बाय क्लोज। सो ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, जो आपने जिसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी, मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि हर एक जो यूनिक जॉब है, जैसे क्लर्क एक यूनिक जॉब है, तो पूरा एक क्लर्क का एक पूरा ग्रुप बन जाए। एक ग्रुप किसका बन जाएगा, क्लर्क का ग्रुप बन जाएगा। अब क्लर्क में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। एक ग्रुप किसका बनेगा, सेल्समैन का बनेगा। सेल्समैन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरा ग्रुप आ जाएगा। एक ग्रुप किसका बनेगा, मैनेजर का बनेगा। मतलब इस जॉब टाइप अगर मैं ग्रुप बाय करूंगा, ग्रुप बाय जॉब, तो इस जॉब कॉलम की जितनी यूनिक वैल्यूज हैं उन सबका एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर जो भी मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली जो काउंट फंक्शन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो ये भी क्या है, मेरे पास एक ग्रुप फंक्शन है। व्हाट इज दिस इज अ ग्रुप फंक्शन। तो जो भी मैं ग्रुप फंक्शन अप्लाई करूंगा अगर ग्रुप बाय को यूज करते हुए, तो वो ग्रुप फंक्शन हर एक ग्रुप के अंदर अप्लाई होगा। जैसे पहली बार इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, फिर इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, फिर मैनेजर ग्रुप के लिए अप्लाई होगा, फिर प्रेसिडेंट ग्रुप के लिए होगा, एनालिस्ट ग्रुप के लिए होगा, जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं उनके ग्रुप के ऊपर वो अप्लाई होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखिए सिलेक्ट, क्योंकि मुझे काउंट करना है, सो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम, ये इस टेबल का नाम सपोज EMPL, देन ग्रुप बाय जॉब। ये कुछ इसका आंसर बनेगा। देखिए इसको आप समझिए, मैंने ग्रुप बाय जॉब क्यों किया है, ग्रुप बाय मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि क्वेरी में दिया हुआ था बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच जॉब टाइप। मतलब जितने भी जॉब टाइप हैं, जितने भी जॉब टाइप की यूनिक वैल्यूज है उसके ऊपर मुझे एक काम करना है। सो ऑब्वियसली आई हैव टू यूज दिस ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय जॉब ही क्यों किया, क्योंकि फॉर ईच जॉब टाइप है, इसलिए मैंने ग्रुप बाय जॉब किया। ओके, फिर ग्रुप बाय जॉब कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो आई वांट दिस काउंटिंग, सो हियर वी हैव दिस काउंट। बात समझ में आई? लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा आएगा, काउंट एस्ट्रिक लिखेंगे, फिर ऐसे डैश डैश लाइन आएगी, फिर इसमें काउंटिंग आएगी आपकी। और वो काउंटिंग कैसी होगी, देखिए अब सबसे पहले क्या करेगा, क्लर्क में कितने, तो क्लर्क कितने मेरे पास 1 2 3 4, सो इस तरीके से 4 आएगा। फिर सेल्समैन कितने हैं 1 2 3, फिर 3 आएगा, फिर जो भी है ऐसे आएगा। तो यहाँ पर ये मालूम नहीं चलेगा कि जो 4 है वो किसकी काउंटिंग है, कौन से जॉब टाइप की काउंटिंग है, 3 किसकी काउंटिंग है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पर जॉब भी लिख के आना चाहिए, जॉब लिख के आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख के आए क्लर्क, सो क्लर्क में 4 एम्प्लॉयज़ हैं। फिर यहाँ पर लिख के आए सेल्समैन, तो सेल्समैन में 3 एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसा कुछ आना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको ज़्यादा बेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन में तो सिंपल काउंटिंग डिस्प्ले करने के लिए कहिए, लेकिन कौन सा काउंट किस ग्रुप के लिए है, तो जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे, जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे उस कॉलम को आप यहाँ पर भी इंक्लूड कीजिए, ताकि जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है वो फंक्शन हमको ये मालूम चल जाए कि वो जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उस फंक्शन का, वो किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है। सो वी हैव टू यूज दिस सिलेक्ट
job comma count asterisk from EMPL group by job. ये समझ में आया कि नहीं? दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो इसका जो आंसर आएगा वो थोड़ा बेटर आएगा. एक जॉब आउटपुट में आएगा, एक आएगा काउंट एस्ट्रिक, और फिर दोनों के नीचे डॉट डॉट लगाएंगे. अब यहाँ पर आएगा क्लर्क, मतलब पहला ग्रुप जो बनाया उसने, पहला जो ग्रुप बनाया उसकी काउंटिंग कितनी आई 4. फिर दूसरा जो उसने ग्रुप बनाया सेल्समैन, सपोज इसकी काउंटिंग आई 3. सो लाइक दिस. ओके, लाइक दिस इट विल गिव्स अस द आउटपुट. सो ग्रुप बाई का मतलब यही है कि आपने ग्रुप बाई के बाद जो कॉलम लिखा है उस पर्टिकुलर कॉलम की जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ होगी उनके लिए उतने ग्रुप बन जाएंगे, और उन सारे ग्रुप में जो आप यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे वो फंक्शन उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा. एक चीज़ यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ग्रुप बाई क्लोज को यूज़ किया है तो यहाँ पर सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो है आप सिर्फ ग्रुप फंक्शन ही यूज़ करें. ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन यूज़ किए तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा. सो अगर ग्रुप बाई क्लोज यूज़ किया है देन सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में सिर्फ ग्रुप बाई फंक्शन ही यूज़ करेंगे. और कॉलम, अगर आप कोई कॉलम नेम यूज़ करें तो कॉलम आप सिर्फ वही यूज़ करें जो कि ग्रुप बाई जिस कॉलम के हिसाब से ग्रुपिंग हो रही है, मतलब जिस कॉलम की वैल्यू उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक एग्जिस्ट करती है. वरना मल्टीपल वैल्यूज़ अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो लॉजिकली रॉन्ग होगा. ये हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी करके बताया था मैंने आपको. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं एक क्वेश्चन हम करते हैं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी फॉर ईच डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी टेबल. अब देखिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी फॉर ईच डीपीटी नंबर. अब देखिए इसमें टेबल की स्ट्रक्चर को थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा. टोटल सैलरी चाहिए किसके लिए? फॉर ईच डीपीटी नंबर. तो देखिए डीपीटी नंबर यहाँ पर एक है कि एम्प्लॉयज़ के क्या डिपार्टमेंट नंबर है, तो हर जो यूनिक डीपीटी नंबर है उसके लिए मुझे टोटल सैलरी यहाँ पर चाहिए. ओके, ये मेरा क्वेश्चन. तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, सिलेक्ट, क्या चाहिए मुझे? टोटल सैलरी चाहिए. तो मुझे क्या चाहिए? सम सेल चाहिए. क्या चाहिए? सम, और फिर सैलरी का जो भी इसमें कॉलम है, सपोज सम सेल फ्रॉम EMPL. और देखिए फॉर ईच डीपीटी नंबर, तो ईच टर्म आया, डीपीटी नंबर के लिए आया, मतलब मुझे ग्रुप बाय क्लोज यूज करना है. ग्रुप बाय डीपीटी नंबर. और एक मैंने बताया कि डीपीटी जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे उसको आप सिलेक्ट में जरूर लिखिए. तो सिलेक्ट डीपीटी नंबर कोमा सम सेल. तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, जिस कॉलम के हिसाब से आप ग्रुपिंग करेंगे उसको सिलेक्ट में आपको एडिशनली रखना ही है. और फिर जो भी आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उस फंक्शन को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे. आप सेलेक्ट के बाद जो आप लिखते हैं वो तो वैसे के वैसे ही आते हैं. जैसे यहाँ पर डीपीटी नंबर आएगा, यहाँ पर सम सेल आएगा, और फिर नीचे डॉट डॉट लग के आपकी जो वैल्यूज़ है वो आएंगे. लेकिन आप चाहते हो यहाँ पर सम सेल नहीं आए, टोटल सेल आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इनके आप अलाइज बना सकते हैं. सिलेक्ट डीपीटी नंबर कोमा सम सेल, और फिर इस थोड़ी स्पेस दीजिए और डबल कोट्स में यहाँ पर लिख दीजिए टोटल सैलरी, या जो भी आप अलाइज लिखना चाहते हैं. ठीक है, फ्रॉम EMPL, बाकी टेबल जो भी क्वेरी आपकी चल रही है. तो अब सिंपल इसका जो मतलब है डबल कोट्स में जो आप ऐसे लिख के देंगे, मतलब अब सम सेल डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी जगह पर क्या डिस्प्ले होगा? टोटल सैलरी डिस्प्ले होगी. मतलब यहाँ पर क्या आएगा? टोटल सैलरी आएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम अलाइजिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलम अलाइजिंग. तो कॉलम अलाइजिंग का लॉजिकली कोई मतलब नहीं होता. सिंपल आपका जो आउटपुट है उसको बेटर वे में, यूजर फ्रेंडली आउटपुट के लिए आप कॉलम अलाइज को यूज करते हैं. अगर हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं देन नो वेयर क्लोज, इसको आप बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि हम ग्रुप बाय में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यू के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाते हैं. तो वेयर क्लोज क्या होता है? वो सारी रोज के लिए अप्लाई होती है. वेयर क्लोज इज यूज टू अप्लाई द कंडीशन फॉर ऑल रोज. सारी रोज के लिए ये कंडीशन अप्लाई करें.
जबकि जब हम ग्रुप बाय लगा देते हैं तो सारी रो रहती नहीं है, फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, जो सारे आपके रिकॉर्ड थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। सो वेयर जो क्लोज है वो ग्रुप में कंडीशन अप्लाई नहीं करता, वेयर क्या करता है, सारे रिकॉर्ड में कंडीशन अप्लाई करता है। इसी वजह से जब आपने ग्रुप बाय यूज़ कर दिया तो वेयर क्लोज नहीं आएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर ग्रुप में आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है देन वी हैव टू यूज द हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज यहाँ पर स्पेशली बनाया गया है। क्या इसका यूज है? इट इज यूज टू अप्लाई द कंडीशन विद इन द ग्रुप, यूज टू अप्लाई द कंडीशन फॉर ईच ग्रुप, जो भी ग्रुप बनाए। सर तो ये हैविंग क्लोज है, ये ग्रुप बाय के साथ ही आएगा हमेशा? हाँ, हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही आएगा और वेयर नहीं आएगा अगर हमने ग्रुप बाय यूज किया। अब देखिए, अब यही वाला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या करना है हमको। अब बच्चों इसमें एक चीज है कि अगर जो ग्रुप आपके बनते हैं, अब अगर उस ग्रुप में भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर वही वाला करता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो देखिए रिसर्च में 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, क्लर्क में 1 एम्प्लॉय काम करता है, एनालिस्ट में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि जो ग्रुपिंग हमारी बन रही है उस ग्रुपिंग में हमको कोई कंडीशन लगानी है, उसमें कुछ हमको कंडीशन लगानी है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो कि ये जो हम सम सैलरी डिस्प्ले कर रहे थे डिपार्टमेंट नंबर 10 में, मतलब हर जो डिपार्टमेंट, हर यूनिक जो डिपार्टमेंट नंबर था उसकी टोटल सैलरी डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी डिस्प्ले करो जिसमें 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय किस में काम करते हैं? देखिए 10 में 3 करते हैं और 30 में भी 2 करते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें काम करते हैं उनका डिस्प्ले करना है, मतलब 20 का नहीं करना। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब ग्रुप बाय डीईपीटी नंबर लिखेंगे तो डीईपीटी की जितनी यूनिक वैल्यू है 10, 20 और 30, इनके लिए 3 ग्रुप हमारे पास बन गए। अब उन तीनों ग्रुपों में ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करने पड़ेंगे, मतलब उस ग्रुप के अंदर आपको कंडीशन लगानी है। देखो ध्यान से इसको समझना, उस हर एक ग्रुप के लिए हमें कंडीशन लगानी कि किस ग्रुप में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा काम करते हैं सिर्फ उसी के लिए मुझे टोटल सैलरी डिस्प्ले करना है। तो ग्रुप में कंडीशन लगानी है तो क्या यूज़ करूँगा? हैविंग यूज़ करूँगा। इसी क्वेरी को कुछ मैं इस तरीके से करूँगा, ये मैं एक बार रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता हूँ। सेलेक्ट सम सैलरी, इसमें तो एक तो उस कॉलम को डिस्प्ले कर देता हूँ, सेलेक्ट डीईपीटी नंबर कोमा सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डीईपीटी नंबर। अब ये तो सारे ग्रुप के लिए चलेगा। हैविंग, अब हर ग्रुप में, अब हैविंग में हमेशा ध्यान रखना, हैविंग चूंकि जो कंडीशन है वो ग्रुप में लगाता है, तो हैविंग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो कुछ ग्रुप फंक्शन के थ्रू ही आएगा, यहाँ पर कभी भी कोई कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि एक ग्रुप में कंडीशन अप्लाई करता है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स वहाँ पर होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए। सो हैविंग काउंट एस्ट्रिक, हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन इक्वल टू 2, select DPT number comma sum salary from employee group by DPT number having count asterisk greater than 2, एंटर कर। तो ये क्या किया, देखो अब यहाँ पर 20 नहीं आया, 10 और 30 आया। क्यों आया? क्योंकि जो 20 वाला जो ग्रुप था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड था। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इक्वल को हटा दूं, तो क्या होगा बच्चों? सर तो 10 ही आएगा, सिर्फ 10 ही आएगा, तो सिर्फ देखिए 10 ही है। तो इस तरीके से आप ग्रुप के अंदर कंडीशन को भी लगा सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, और इतना अच्छा इनमें दिमाग लगता है, इतना अच्छा लॉजिक लगता है कि अगर हमने क्वेरी बिल्कुल सही की तो आप देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी एक सिंगल कमांड में एसक्यूएल हमको करके दे रहे हैं। एक क्वेरी इसमें लास्ट में कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज का काम। कि हमारे पास टेबल थी,
सो अब मैं करता हूँ कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट. Display the maximum salary for each department where sum of salary is greater than 1 lakh. मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम सैलरी चाहिए, लेकिन उसी के लिए चाहिए जिनकी जो टोटल सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा है. बात समझे? सिलेक्ट क्या चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग करूंगा. और क्या चाहिए? मैक्सिमम सैलरी चाहिए. सो मैक्स सैलरी फॉर्म एम्प्लॉय ग्रुप बाय किसके हिसाब से करनी? डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन उसी की चाहिए जिस ग्रुप में जो सम सैलरी है वो कितनी 1 लाख से ज़्यादा है. सो हैविंग सम सैलरी greater than 1 lakh. देखिए सिर्फ रिसर्चर निकल गया है.